اور ہم اور آپ مل کر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اچھی نیت کی بہت ساری برکتیں ہیں. یعنی کہ اچھی نیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اچھی نیت کی برکت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. یہ فائدے کی چیز ہے تو ہم کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کام ایک ہے، کام ایک ہے. اب نیتیں جتنی زیادہ کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. کاش ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولنے والے بن جائیں. یعنی کہ تھوڑا رک جائے. ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کچھ بھی کام کرنے سے پہلے رک جاتے تھے. یعنی کہ یہ کام جائز کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو پہلے رک کر یہ نیتیں کرنے کا معمول ہمارے بزرگان دین کا ہے. بچے تھوڑا ساتھ دیں گے اس میں. اصل یہ بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، بچے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں. بچے کو بچہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، بچوں کو جو سوجھ بوجھ ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پتہ ہے؟ بڑوں نے ان بچوں کے بیچ میں آگے بڑھ جانا چاہیے. سیدھا سمپل سا. کیونکہ بچوں کو محفل سے اٹھانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے بڑے ہو گئے کہ محفل کا سلسلہ کہ ہم برکتوں سے کیوں محروم رکھے بچوں کو. تو جو ادھر بیٹھے تو اگر آ کر جگہ ہے بڑھیا ہے تو مدینہ. اگر سمجھ میں آتی ہے بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیتوں کے تعلق سے میں عرض یہ کر رہا تھا. ابھی دوران بیان یہ چلتا رہے گا. یہ ڈسٹرب اگر ہوا تو بیان کرنے والا اپنی ذہن کے مطابق بیان کرتا ہے. اگر کچھ وہاں پر تھوڑا سا کچھ آ گیا تو پھر وہ گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو معاملہ چل رہا ہے نا اس پہ توجہ رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ سنیں. اچھی نیتوں کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اچھی نیت کرنے کی ہماری ایک عادت ہونی چاہیے. دعوت اسلامی کی ایک کتاب ہے فیضان نماز. اس میں نا نیت کے تعلق سے ایک بڑی پیاری نصیحت ایک پیر صاحب کی لکھی ہے. نیت کتنی اہم ہے. کام تو کر لیتے ہم، نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. کام ہو جائے گا، اچھا گناہ بھی نہیں رہے گا. وہ کام اگر وہ نیت نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے ایسا، پر ثواب سے محرومی ہے. اب ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پیر صاحب، یعنی کہ ہم کچھ کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب آ جائے، ہمارے مولانا صاحب آ جائے ہمارے گھر میں. یعنی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. ایک مرید نے بھی اپنا گھر بنایا، بڑا عالیشان گھر بنایا اس نے، اور خواہش کی کہ میرے پیر صاحب پہلا قدم میرے گھر میں رکھے. یعنی کہ گھر کی جو افتتاح ہوگی میرے پیر صاحب کا پہلے قدم. پیر صاحب کو دعوت دی گئی. پیر صاحب تشریف لے آئے. پیر صاحب نے گھر کا جائزہ لیا، دیکھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، سب پوچھنا. روم میں آئے، ایک ہال میں آئے. ہال میں آنے کے بعد آپ نے کہا بیٹا یہ کھڑکی آپ نے کس لیے نکالی ہے؟ تو عرض کی پیر صاحب یہ کھڑکی اس لیے نکالی ہے، یعنی کہ نیت کے تعلق سے نا، یہ کھڑکی تم نے کس نیت کے ساتھ نکالی ہے؟ کہا کہ کھڑکی اس لیے کہ اس سے ہوا آئے گی، اجالا آئے گا. دن میں تو لائٹ نہیں ہوتی تو اجالا آئے گا. پیر کامل تھے. اپنے مرید کی توجہ دلاتے ہوئے کہا بیٹا اگر تم اس کھڑکی کو نکالنے سے پہلے، یہ کھڑکی نکال رہے تھے اس وقت یہ اگر نیت کر لیتے کہ اس کھڑکی سے مؤذن کی اذان کی آواز آئے گی، اس نیت کے ساتھ اگر نکالتے نا تو کھڑکی نکالنا تمہارے لیے ثواب ہو جاتا. اب سوچئے آپ، اجالا تو آ ہی جاتا نا. یعنی کہ اگر وہ بندہ یہ نیت کر لیتا کہ یہ کھڑکی سے، یہ دروازے سے مؤذن کی آواز آئے گی، کیونکہ دیوار پیک رہے گی، آواز نہیں آئے گی. یہ نیت ہو جاتی تو جب آواز آتی کیا ہوتا؟ ثواب ملتا. تو یہ ہوتا ہے کام کر لیتے ہم، ثواب نہیں ملتا. تو توجہ کے ساتھ ہم نے نا کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اچھی نیت کرنی ہے. اچھی یعنی کہ جائز کام کرنے سے پہلے اپنی عادت بنانی چاہیے. ہم نے اچھی نیت ہم کر لیں. آج اجتماع میں ہم شریک ہوئے، غوث پاک کی یہ محفل سجی ہے. 10 دن سے یہ محفل سجی ہے. آج کا 11واں دن ہے. ماشاء اللہ. اللہ
सजाने वालों को भी, आने वालों को भी, बोलने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भी काम करे ना बस उसमें एक नियत हो, और खाली एक नियत भी अगर होगी ना हमारी, वो एक नियत क्या है, अल्लाह की रज़ा। मैं जो काम कर रहा हूँ ना, जो भी काम ये सजा रहा हो, बैठ रहा हो, उठ रहा हो, अल्लाह की रज़ा के लिए। अब बयान सुनने आए हम, किसके लिए सुनने आए? बयान सुनने के लिए आए, अगर सिर्फ सुनने के लिए तो सुनकर चले जाओगे। इसमें नियत जितनी अच्छी कर लेंगे ना, फ़ायदा उतना आपको हो जाएगा। पहली नियत, अगर दिल में नियत जमे, नियत किसको कहते हैं पता है? नियत दिल के मजबूत इरादे का नाम है। यानी मजबूत इरादा है दिल में, हाँ ये, और ज़बान से कह लेना ये बेहतर है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दिल में नियत होगी, ये काफ़ी है कि मैं इसके लिए मजलिस में आया हूँ। तो नियत कर ले, अल्लाह पाक की रज़ा पानी, सवाब कमाने के लिए बयान सुनेंगे। नियत बनती है इंशाअल्लाह करीम। और नियत अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनेंगे इंशाअल्लाह। जो सुनेंगे उसे याद रखकर अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह करीम। दौरान बयान सुस्ती से बचेंगे इंशाअल्लाह। ये भी होता है, ये महफिल ही ऐसी है भाई, सुस्ती आती है। हाँ, चौराहे पर बैठने से सुस्ती नहीं आती है, ये महफिल में बैठने से सुस्ती क्यों आती है पता है? इसकी भी वजह है। यानी कि महफिल में आता है, बंदे का दिल नहीं लगता है, सही है, नहीं लगेगा दिल, इसमें सुस्ती आएगी। क्यों पता है? अल्लाह के कुछ मासूम फरिश्ते मासूम ही होते हैं। बच्चों को मासूम कहते हैं, फरिश्ते मासूम होते हैं, यानी गुनाह ना हुआ है, ना होगा, ना आगे कभी होगा, मासूम होता है। अंबिया किराम मासूम है, बच्चों को मासूम नहीं करना चाहिए। तो फरिश्ते मासूम, कुछ अलग अलग फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी दी है, किसी को रोज़ी देने की, किसी को इंसान की हिफाजत के लिए, बारिश बरसाने के लिए, दीगर जिम्मेदारियाँ दी है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं ना जो सिर्फ सैर करते रहते हैं, यानी कि जिसको हम कहेंगे घूमते रहते हैं और देखते हैं कहाँ अल्लाह और उसके प्यारों का जिक्र हो रहा है। जहाँ उनको ऐसी मजलिस मिल जाती है, जहाँ ऐसी महफिल मिल जाती है ना, फरिश्ते वहाँ आकर बैठ जाते हैं। जब ज़ाकिरीन जिक्र करते हैं ना, दौरान बयान कुछ बात अच्छी लगी, सुभान अल्लाह, ये दिल से कह दिया बंदे ने, सुभान अल्लाह कह दिया, तो फरिश्ते भी उनके साथ जिक्र करते हैं। इसी पर बस नहीं है, जब दुआ मांगते हैं ना तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। अच्छा, इसी पर बस नहीं है, आगे बाज़ाहिर हम आए मजलिस में, सुनकर जा रहे हैं खाली हाथ, पर फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं कि इन खुश नसीबों के लिए खुशखबरी है जो मगफिरत के साथ वापस जा रहे हैं। अब सोचिए, मगफिरत का परवाना मिल रहा है, अब ऐसी महफिल में दिल लगेगा? हाँ, देखिए ये दिल है ना, इस दिल में दो बातें नहीं रह सकती है। और दो बातें कौन सी पता है? एक है दुनिया, दुनिया में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, दुनिया की चाहत, अरे रब की चाहत, दोनों में से एक कोई चीज़ रह सकती है। अगर दुनिया होगी, रब का खौफ नहीं रहेगा, जो चाहत है ना वो नहीं रहेगी। जी हाँ, ये मामला है दिल, कल्ब। हमें चाहिए कि हम दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करने वाले बने। आज का बयान है ना, इंशाअल्लाह हम चंद इसके मदनी फूल सुनने की कोशिश करेंगे। ज़हन तो बना है कि ईमान के ऊपर बयान करने की सआदत पाऊँ, पर इसमें गौसे पाक का महीना है तो चंद हुसूल बरकत के लिए गौसे पाक की भी हिकमतों के ऊपर जुमले इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में पेश करने की कोशिश करूँगा। हम गौसे पाक के मुरीद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करम है कि उसने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है कि उसने हमें सबसे पहले तो मुसलमान बनाया है। देखिए, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने हमें ईमान की दौलत दी है। यकीनन प्यारे इस्लाम भाइयों, जितना शुक्र अदा करे ना रब का, उतना कम है। जी हाँ, याद रहे हम मुसलमान तो पैदा हो चुके हैं,
अभी ज़ाहिरी तौर पर हम ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं मुसलमान की ही तौर पर गुजार रहे हैं, मगर साथ ही ये भी फ़िक्र हमें होनी चाहिए कि जो हमें ईमान की दौलत मिली है ना, ये बात कान खोल कर सुन लीजिए, ईमान की दौलत मिली है ना, ये मरते वक्त भी सलामत रह जाए इसकी गारंटी नहीं है। किसी ने गारंटी नहीं ली हमारे ईमान की कि ये मरते वक्त ईमान पर इसका इंतकाल होगा। हमारे बुजुर्गान दीन की हम फिक्र भी सुनेंगे, खौफ भी सुनेंगे, ईमान के ताल्लुक से, रब के खौफ के ताल्लुक से हम सुनेंगे कि क्या ईमान क्या है। हमारे बुजुर्गान दीन के नज़दीक क्या ये फ़िक्र हुआ करती थी इसके ताल्लुक से। आए उससे पहले हम गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चंद अक़वाल सुनते हैं, गौसे पाक का तारुफ़ भी सुनते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शहंशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मशहूर व मारूफ हस्ती है। आपका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, कुनियत अबू मोहम्मद, मुहियुद्दीन यानी दीन को ज़िंदा करने वाला, और गौसुल सकलैन यानी जिन्नातों और इंसानों के गौस मददगार आपके मशहूर अलकाब हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह 470 हिजरी को जिलान में पैदा हुए, 51 साल की आपने उम्र पाई और 561 हिजरी में आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह खिदमत दीन के लिए आपने तदरीस और बयानात का शोबा इख्तियार फरमाया था। आप अपने मदरसे में बाकायदा लोगों को वाज़ व नसीहत फरमाया करते थे। हफ्ते में 3 दिन आप बयानात फरमाया करते थे। कितने दिन? 3 दिन आप बयान फरमाया करते थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उल्मा वाला लिबास पहनते और ऊंची जगह यानी मिंबर पर बैठकर बयान फरमाया करते थे। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है, फरमाते इब्तिदा में मेरे बयान में 2 या 3 आदमी बैठा करते थे, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती चली गई। घोड़ों से, खच्चरों से लोग दूर दराज से आने लगे, यहाँ तक कि तकरीबन 70,000 से ज़्यादा बयानत की इस्लामी भाई हुई जो तादाद थी, वो बयानत की इतनी तादाद का 70,000 से ज़्यादा इज्तिमा की तादाद हो गई। गौसे पाक की एक करामत है, मशहूर है, सुनते हैं कि जो अभी तो ये माइक है, माइक से पीछे वाला भी वही सुन रहा है, आगे वाला भी वही आवाज़ सुन रहा है, जो स्टेज पर बैठा है वो भी आवाज़ सुन रहा है। गौसे पाक की करामत थी, जो अव्वल बैठा हुआ होता उसको भी वैसी ही आवाज़ सुनाई देती, और जो आखिर में भी बैठा होता उसको भी 70,000 का मजमा है, 70,000 का, पर आवाज़ वैसे ही पहुँचती थी। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहजादे अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की महफिल में बड़े बड़े उल्मा हाजिर हुआ करते थे। इनमें से 400 बड़े उल्मा वो थे जो बाकायदा बयानात को तहरीर फरमाया करते थे, आपके अक़वाल को तहरीर फरमाया करते थे। ये मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बयान के ताल्लुक से ये चंद बातें, उनकी सीरत के ताल्लुक से हमने बातें। अच्छा, बयानात का असर भी कैसा, जो जैसा होता है वो उसका वैसा असर भी होता है। ऐसा कोई बयान मेरे गौसे पाक का खाली ना गुजरा जिसमें कोई अगर गैर मुस्लिम आता, गैर मुस्लिम अगर आता तो वो ईमान की दौलत पा जाता, और कोई गुनाहगार अगर आता, जालिम आता, तो वो तौबा करके ना गया हो। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर ईमान लाया, सुभान अल्लाह, और 1 लाख से ज़्यादा गुनाहगारों ने आपके हाथ पर तौबा फरमाई है। अल्लाह पाक हमें भी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बयानात सुनकर अमल करके अपनी ज़िंदगी नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हमसे मोहब्बत और उम्मत का दर्द कैसा गौसे पाक की दिल में था हमारे लिए। गौसे पाक फरमाते हैं मेरी खुशी इसी में है कि तुम कामयाब हो जाओ। अगर तुम्हारा कोई नुकसान होता है, तुम हलाक होते हो, तो मुझे गम होता है। 545 के लगभग की बात है कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तौहीद के मौजू पर बयान फरमा रहे थे। तवील बयान हुआ, उसके बाद गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला ने गुफ्तगू को समेटते हुए नसीहत के मदनी फूल इरशाद फरमाए। वो क्या है सुनो। मोहब्बत का देखिए, हाँ आज ये जो इतने साल होने के बाद भी जो मोहब्बत हमारे दिलों में कायम है ना, इससे हमको एक दर्स भी मिलेगा एक कि मोहब्बत दोगे मोहब्बत पाओगे। गौसे पाक कैसी मोहब्बत करते थे हमसे। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी तरफ सिर्फ अल्लाह करीम की रज़ा के लिए मुतवज्जो होता हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी रहम दिली है और शफ़क़त है कि अगर हो सकता, गौर से सुनिए अल्फाज, अगर हो सकता तो मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी हर एक की कब्र में खुद उतरूं और मुनकर नकीर के सवालात भी मैं खुद ही दूँ। कैसी मोहब्बत सोचिए। दुनिया में चाहे जितना गहराई दोस्त क्यों ना हो, चाहे कितना ही चहीता बेटा क्यों ना हो, वो ये ख्वाहिश कर ही नहीं सकता कि मेरे बेटे तेरी कब्र में मैं तेरी जगह मैं उतर जाऊंगा और कब्र के सवालात के जो मामलात हैं वो मैं दूंगा। कैसी मोहब्बत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमसे फरमा रहे हैं। काश इस मोहब्बत का सदका हमें भी मिल जाए और हम भी हकीकी गौसे पाक से सिर्फ नारे नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत करने वाले बन जाए। आमीन। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि काश हम कामिल मुरीद बन जाए। मुरीद का मामला आता है तो बड़े खुश हो जाते हैं हम। गौसे पाक ने मुरीद को उसको कहा है, यानी कि गौसे पाक अगर कोई मुरीद नहीं है ना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गौसे पाक का मुरीद बन जाए, फ़ायदा है। क्यों? इसलिए कि गौसे पाक अपने मुरीदों के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के मरेगा नहीं। ये गौसे पाक के मुरीद बनने का फ़ायदा है। चाहे वो चिश्ती हो, सरवर्दी हो, जो भी सिलसिले में हो, सब आते हैं गौसे पाक के सिलसिले में ही सब शामिल होते हैं। तो जो भी सिलसिले में आप बने, आप पीर कामिल हो। पीर कामिल के इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला ने 26 मदनी फूल इरशाद फरमाए। पीर कैसा हो, कभी पढ़ना इमाम गज़ाली को। इमाम गज़ाली को पढ़ने का आपको मशवरा दूंगा, यानी कि उनको पढ़ने से मुराद इनकी लिखी हुई किताबें पढ़े आप। इनकी ज़िंदगी की आखिरी किताब जो है ना, बहुत सारी किताबें आपने लिखी है, बहुत सारी किताबें, उसमें से आखिरी आपकी ज़िंदगी की किताब आपने लिखी है मिनहाजुल आबिदीन। वाकई में अगर आप ये किताब पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि हम दुनिया में ना फंस गए आगे। हाँ, अगर पढ़कर अगर अमल का जज्बा अगर पैदा हो, जंगलों की तरफ निकल जाए। हाँ, और हाँ, एक चैलेंज के साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये किताब है ना, यानी कि कोई कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो, कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो, वो एक नशीस में ये किताब को पढ़ नहीं सकता। हाँ, शैतान बड़ा अय्यार व मक्कार है। कई मरतबा हमने भी कोशिश की है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत मौलाना इलियास अख्तर कादरी ने मुताले का ज़हन दिया है ना दावत इस्लामी वालों को, मुताला यानी कि मुताले का ज़हन, किताबें पढ़े, बुजुर्गान दीन की सीरत पढ़े, कुरान पढ़े, यानी कि एक मज़बूत ज़हन दिया है। कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो वो एक नशीस में, यानी कि अगर कोई ये कहे कि भाई वो 300-400 सफ़ा की 500 सफ़ा की किताबें में एक ही बार पढ़ लूँगा, पढ़ने वाला है पर नहीं पढ़ पाएगा कि काम ऐसे मामलात आ जाएंगे, कुछ ऐसे अर्जन ये मामला वो बंदा नहीं कर पाता है। इसको पढ़े, मैं आपको मशवरा दूंगा, पढ़े आप उसको, आपको मज़ा आएगा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह। चैलेंज के साथ कह रहे यार, पहले कह भी रहे पढ़ने का मशवरा भी दे रहे, थोड़ी थोड़ी पढ़ने की कोशिश करें। एक एक उसकी जो घाटियाँ है ना, वो घाटियाँ अगर पढ़ेगा ना, जब पता चलेगा 6 घाटियों का तस्करा है उसके अंदर,
पहली घाटी ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, आए वाकई में पढ़ेंगे जब पता चलेगा। गौसे पाक के मुरीदों के ताल्लुक से जो बात थी ना, गौसे पाक के मुरीद बनेंगे इंशाअल्लाह, जो नहीं बने हैं वो बन जाए, बनेंगे इंशाअल्लाह। एक एक हमारा अमल रहेगा, एक भी मुसलमान बाकी ना रह जाए, यानी सबको हमको गौसे पाक के कदमों में डालना है, ये हमारी फिक्र होनी चाहिए। जी हाँ, ये फिक्र दिलाते हुए गौसे पाक अपने मुरीदों के ताल्लुक से फरमाया, जितने भी मुरीद हैं ना उनसे मैं ये फरमान गौसे पाक का अर्ज कर रहा हूँ। मैं भी गौसे पाक का मुरीद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। गौसे पाक अपने मुरीदों के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाते हैं, सुनिए। मेरा सच्चा पक्का मुरीद वो है जो दोपहर की सख्त गर्मी में रोजे रखता हो, पहला मदनी फूल। दूसरा, मेरा मुरीद रात के अंधेरों में रोशन चराग होता है। अब ये जो दोपहर के वक्त की सख्त गर्मी के मामला जो बताए गए, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरा सच्चा पक्का मुरीद वो है जो दोपहर की सख्त गर्मी में रोज़े रखता हो। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब गुनाहों का बाजार गर्म हो जाए, शैतान गुनाह की तरफ खींच रहा हो, नफ्स अम्मारा ख्वाहिशात पर उबार रहा हो, मेरा मुरीद उस वक्त नफ्सानी ख्वाहिशात से रुकते और गुनाह की तरफ नहीं बढ़ते, गुनाहों के असबाब जितने भी हो उसे इख्तियार नहीं करते और शैतान को मार भगाते। ये मेरे मुरीद के ताल्लुक से, यानी कि अपने मुरीद के ताल्लुक से आप इरशाद फरमाइए। पहला, चाहे जितना ही कैसा ही माहौल क्यों ना हो जाए, यार आज का माहौल ऐसा है, क्या करे भाई, यहाँ जाते ये है ये वो है, अब माहौल के एतबार से गौसे पाक के मुरीद है ना, गौसे पाक का फरमान है कि मेरा मुरीद रुकेगा, शैतान के बहकावे में नहीं आएगा, नफ्स के बहकावे में नहीं आएगा मेरा मुरीद। अच्छा, दूसरा कॉल भी सुन लीजिए। दूसरा कॉल क्या है? मेरा मुरीद रात के अंधेरे में रोशन चराग होता है। इसका मतलब क्या है? जब मुआशरे में गुनाहों का अंधेरा छा जाए, बदअकीदगी, बेहयाई, फहश और जुल्म ज़्यादती बढ़ जाए, तो मेरा मुरीद हिदायत का चिराग बनकर चमकता है और मुबल्लिग बनकर उठता है और नेकी की दावत की धूम मचाते हुए मुआशरे को अंधेरे की तरफ से रोशनी की तरफ निकालता है। सुभान अल्लाह। ये दो बातें जो है ना, पहले इसमें सीखने को क्या मिली? अपनी इस्लाह। क्या? पहला जो कॉल है ना, मेरा मुरीद सख्त गर्मी में भी रोजे रखता है, इससे क्या है? गुनाह से बचता है, यानी कि अपनी इस्लाह करता है। और दूसरे मदनी फूल में क्या मिला ये कि दूसरों को भी नेकियों की तरकीब दिलाता है, दूसरों को भी गुनाह से बचाता है। अब देखिए कितना मजबूत है। अगर हम इस बयान को अगर यहीं रोक कर थोड़ा गौर करें ना, कामिल मुरीद अगर सोया हुआ, मैं अपने आप को चेक करूं तो ये दो मत ले लो, आप दो इरशाद ले लो और इसी पर गौर फिक्र कर लो आप कि मैं क्या सच्चा पक्का मुरीद हूँ। सोचिए, गौर कीजिए कि ये सारे मामलात से मैं रुकाता हूँ। तस्करा तो करते हैं, बुराइयों के तस्करे करने वाले बहुत मिल जाएंगे, गुनाह की तरफ लाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, एक ढूंढोगे 10 मिल जाएंगे आपको। क्या कोई ऐसा है जो खुद भी गुनाह से बचता हो और दूसरों को भी बचाता हो? ये गौसे पाक हमको दर्स दे रहे हैं। गौसे पाक कि इन फरमान पर जो जितना अमल करेगा, गौसे पाक ने जो बोला, मेरा सच्चा पक्का, क्या कहा? सच्चा पक्का मुरीद कौन है? ये दो मदनी फूल जो समझ लीजिए। अब जितना अमल करेगा बंदा उतना ही क्या होगा? वो मजबूत होगा। फिर सारे अकवाल पढ़ते जाओ, सुनते जाओ और झूमते जाओ। गौसे पाक के मुरीदों के ताल्लुक से जो अकवाल है ना, हाँ, पढ़ते जाओ और सुनते जाओ। नारे लगाने से मोहब्बत का इजहार करना हमने छोड़ देना चाहिए। अमल के मैदान में आए। जी हाँ, अमल के मैदान में आना ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे जैसा मुआशरा आता जा रहा है ना, वैसी वैसी तब्दीलियाँ आ रही है। ये मामला, ये अमल, ये दुनिया है ना जो अब आज अमल
के मामलात में है। और हाँ, अमल के ताल्लुक से नारे लगाने से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ मैं। अगर कुछ चुकी हो जाए ना तो इस्लाह करे, दावत इस्लामी वालों का एकदम खुला है, टोक दे बिल्कुल भी। दौरान बयान अगर कुछ गलती हो जाए बिल्कुल भी टोक दे, इंशाअल्लाह रुजू करता पाएगी। ये मेरे पीर ने ज़हन दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। दौरान बयान है, कोई ज़रूरी नहीं बाद में चिट्ठी देना, ये करना, कोई ज़रूरी नहीं भाई। अभी बताओ आप, तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, नारे लगाने से जन्नत नहीं मिलेगी। हाँ, दावत इस्लामी के एक मुख्तसर सा रिसाला है, मौला अली के 72 इरशादात। पहले ही सफ़े पर आपको चौथा फरमान मेरे अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये पढ़ लेना आपने। दावत इस्लामी की वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। जी हाँ, चौथा इरशाद जो है ना, जो ये गुमान करे, गौर से सुनिए बात, जो ये गुमान करे कि अमल नेक अमल अपनाए बगैर जन्नत मिल जाए, वो झूठी उम्मीद का शिकार है। किसका है? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल है। अमल की बहुत ज़रूरत है। अगर अमल नहीं होगा ना, सर बहुत मामला हमारे हमें असल हम सारे मामला है ना, बयान आपके यहाँ पर अमल में कितने होते हैं यार, कितने बयान सुनोगे यार आप, कितने सुनोगे। कई नेक लोग आकर आपको समझा रहे हैं। कब हम आएंगे अमल के मैदान में, कब आएंगे आप? निसी बस एक कान से सुनना, ये दो कान इसलिए थोड़ी ना दिए एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, इसलिए थोड़ी ना दिए कि दोनों कानों से सुने जल्दी अमल करे। हाँ, ये दो कान है भैया, ये समझ कि एक कान से निकलना, ये समझ लिया हम तो ये समझ लिया दो कान है कि ज़्यादा बातें सुने, अब इधर से भी सुने अच्छी बातें, इधर से भी अच्छी बातें सुने। क्यों हम कमज़ोर बातें सुन रहे हो, क्यों गुनाह भरी बातें सुन रहे हैं यार? अमल के मैदान में कब आएंगे हम? सुन्नी अपने आप को हम कहते हैं सुन्नी, हम बेशक है, हम डंके की चोट भी कहते हैं हम सुन्नी है। स्टेट पे हो या गली में हो या घर में हो या इनफरादी तौर पर हो, ऐसा नहीं कि स्टेट पे कुछ और गली में कुछ और। ये सुन्नियों का मिजाज ही नहीं है, जो है डंके की चोट पर बोलता है। पर कैसे बोलेगी हम? अमल के मैदान में कब आएगी यार? नारे हम कैसे लगाते हैं, क्या इश्क भरे नारे होते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, यानी कि इश्क मुस्तफ़ा में हमें मौत भी कबूल है। क्या इश्क है यार, दाद देनी पड़ेगी। अगर कोई वाकई में अगर कोई सच्चा आशिक रसूल है वो तो, अरे यार क्या नारे भर रहे यार, ये क्या नारे भर रहे यार, क्या जान भी कबूल है यार इनको। कैसे आशिक रसूल है, जान कबूल है यार इनको, इश्क रसूल में जान दे देंगे। ऐसे इश्क रसूल है वाकई में। सुनेगा कोई तो यही कहेगा आया बड़े पक्के यार। पर अपना खुद का जायज़ा ले लो, नारे लगाने वालों खुद का जायज़ा ले लो। ये आशिकों को आशिक की बात में अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल है, आप भी आशिक रसूल है। ये इश्क की बातें है, किताबों में मत ढूंढना इसको भाई, हज़रत ने कौन सी किताब से पढ़ गया है। इश्क की बातें समझाओ, समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है, रब का हुक्म है। समझा रहा हूँ मैं आपको, इससे बाहर निकले हम। गौर करें, एक अक्लमंद इस जुमले के ऊपर गौर करेगा। इश्क में जान कबूल है, जान देना कबूल है, नमाज कबूल नहीं है, फजर में उठना कबूल नहीं है, सुन्नतें पढ़ना कबूल नहीं है। गौर करिए बातों के ऊपर आप, कैसे आशिक रसूल है हम, कैसे गौसे आजम के मुरीद हैं हम, यानी कि सब कुछ कबूल है। लंगर लुटा देंगे, एक बोल रहे 11 देंगे, लुटा देंगे हम, लुटाओ बेशक लुटाओ। पर पहले हम नियाजी से पहले क्या है, नमाजी है। हम नमाजी भी पढ़ेंगे, हम आशिक रसूल गौसे आजम के मानने वाले ना, नमाजी भी पढ़ेंगे और नियाजी भी खिलाएंगे, दोनों नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, हमारा मिजाज तो ये होना चाहिए, ये खुशनसीबों का है हिस्सा है, ये खाना खिलाना खुशनसीबों का हिस्सा है, सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ खाना, हमको खाना याद है, कई ऐसे इनकार भी करते हैं और खाते भी रहते हैं, पर हम खाने भी वाले खिलाने भी वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। अल्लाह ने हमको ऐसों में रखा है। हमें चाहिए कि हम अपने आप के ऊपर गौर करें कि हम
वाकई में अमल से कितने दूर होते चले गए। अच्छा, ये दिल में से जो खौफ है ना हमारा, हम कुरान हदीस पढ़ते नहीं असल। जी हाँ, इल्म से बहुत दूर है यार हम, बहुत दूर है। अभी आज ना सुबह से आया हूँ मैं, और मेरा पहला ज़रा बोल रहे थे पहली मर्तबा मैं आया हूँ, पहली मर्तबा नहीं आया, कई मर्तबा काफ़िले लेकर आया हूँ मैं यहाँ। जी हाँ, हम स्टेट वाले नहीं, मुकर्री नहीं है भाई, इन्होंने कहा है मुकर्री नहीं है भाई। हम मुबल्लिग है, डोर डोर जाकर, गली गली जाकर नेकी की दावत देने वाले लोग हैं। जी हाँ, और ये फ़ख्र है हमको इसके ऊपर। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है इसके ऊपर कि अल्लाह ने ऐसों में रखा है। जी हाँ, ऐसों में रखा है। हम आज स्टेट में बोले ना, कल कोई दूसरा आया बयान करे, हम नीचे बढ़ जाएंगे। ये ख़त्म, ये चीज़ें ना, ये जो हम जितना बढ़ावा करते हैं ना, ये सुधारने की कोशिश करें हम। ये अगर सुधरा ना, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है ये। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक साहबी से कि जो तेरे दिल में खटके ना उसे छोड़ दे, जो तेरे दिल में खटके उसे छोड़ दे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिल की खटक क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई काम करो ना, ये दिल पर हाथ रखकर, ये आपको मैं ना एक हमारे दावत इस्लामी के सरफरस्त मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब रहमतुल्लाह ताला, ये हदीस पाक पढ़ी ना, और तब वो कॉल वाकई में यार क्या हमारे उलमा की सोच और क्या ज़हनियत, और कुरान और हदीस के ऊपर क्या अमल और क्या पकड़ है हमारे उलमा की। आप फरमाया करते थे कि बाबू, अगर ऐसे मामला आ जाए, कॉल मुफ्ती साहब का कॉल नहीं लग रहा, ये काम यार, ये क्या करूँ यार, ये काम करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, सही है नहीं है, शरीयत इसकी इजाज़त देती है नहीं देती है। अगर ऐसे मामला कहीं आ जाए ना, तो ये दिल है ना, ये दिल पर गौर कर लेना। अगर दिल में अच्छा लग रहा है ना तो कर लेना, और ना छोड़ देना। ये मुफ्ती है, आपने कहा था ये अपने मुफ्ती से पूछ लेना पहले, आपके अल्फाज दिए। जब ये हदीस पाक मैंने पढ़ी ना, जब पता चला हाँ ये तो हदीस पाक में यार, ये तो सिर्फ ज़बान ही नहीं है, हदीस पाक का मफ़हूम आपने पेश कर दिया। ये दिल की खटक के ताल्लुक से कहा कि ये दिल की खटक कैसे हम पहचाने। तो जब भी कोई काम करो ना, तो दिल पे हाथ रख कर है ना, ये दिल की धड़कन देख लेना। जो कोई भी बंदा कोई बुरा काम करता है ना, कोई भी बुरा काम करता है, ये दिल की धड़कन है ना बढ़ जाती है, इसकी धड़कन है बढ़ जाती है। हाँ, और जो जायज़ काम करता है, जो जायज़ हो, तो ये दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, उस उल्टा उसको सुकून महसूस होता है, उसके कल्ब में सुकून महसूस होता है। अब ये दिल की, अरे यार चलो अब मैं भी यार चेक करूँगा, अब ये मैं जो भी काम करूँगा ना, मेरे को तो यार हजरत ने बोल के चले गए, अब मैं ना वैसे दिल पे हाथ रख के ही करूँगा। याद रखिए, ये जो मामला है ना, ये दिल की खटक का, ये दिल, सहाबा कराम दिल साफ देंगे, तो इनको इरशाद ये भी है ना, इनके लिए था। हमारे दिल क्या है, हम गौर कर लें, हमारे दिल कैसे है। जब कोई बंदा पहली मर्तबा जिंदगी में पहली मर्तबा कोई गुनाह करे ना, तो ये दिल धड़कता है। हाँ, घबराहट महसूस होती है, पहली मर्तबा चोरी कर रहा है, पहली मर्तबा झूठ बोल रहा है, पहली मर्तबा किसी की दिल आज़ारी कर रहा है, गाली दे रहा है, जो भी मामला है बुरे, ये दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और अगर वो पहली जो मामला है, वो पहले मामलात में बंदा अगर ना रुके ना, ये जो खटक है ना, ये ख़त्म हो जाती है। क्यों? पहले दिल साफ था, जब पहली बार पाक एकदम प्लेन, अगर ये सफ़ेद कपड़ा प्लेन है, कोई डाल नहीं है, तो कोई भी देखता है इसको। और जैसे ही कोई आया ना, सब नुक्ते को देखते हैं, पूरे कपड़े को नहीं देंगे पर उसको एक को देंगे, तो ये दिल पे ये सिया नुक्ता लग जाता है। फिर ये धीरे धीरे गुनाह करते करते ये सारा मामला है ना, ये फिनिश, ख़त्म। फिर इज्तिमा में बैठना, अरे यार हजरत 1 घंटा हो गया यार, क्या यार हजरत, जुमा का खुतबा इतना लंबा कर रहे हैं हजरत, बस करो यार, 10 मिनट ज़्यादा हो गया हजरत, कब तक के बोलोगे यार। नमाज 12 रकात यार कैसी पढ़ेंगे यार, ये जुमा की यार 14 रकात कैसी पढ़ेंगे यार, फजर में यार कैसी उठेंगे यार, ईशा की 17 रकात कैसी पढ़ेंगे। दिल पे गौर कर ले भाई। जी हाँ, दिल पे गौर कर लो, ये दिल पर कैसा जंग चढ़ चुका होगा।
اور یہ کتنا زنگ آلود ہو چکا ہوگا کہ ہم کو اچھائی کرنے میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، مسجد میں جانے کے بعد دل نہیں لگ رہا ہے مسلمانوں کا، مسجد میں جانے کے بعد یہ حال ہو چکا ہے۔ ہمارے معاملات اتنے ایسے ہو چکے ہیں کہ بس جیسا مسجد میں گویا کہ ہم جاتے ہیں تو پرندہ جس طرح سے پنجرے میں پھڑپڑ کرتا ہے نا، کب کھلے ان میں کب جاؤ، کب کھلے ان میں کب جاؤ، تو کب حضرت 2 رکعت پڑھا ہے کب لے جاؤ گا یار۔ دعا کی بھی توفیق، کیا دعا فرض تھوڑی ہے، تھوڑا یار کام ہے یار کوئی، سنتیں گئی، نفل گئی، دل بھی گیا پھر شاید۔ ہاں دل پہ غور کر لے میرے بھائی، امام غزالی کو پڑھیں گے نا آپ، پتہ چلے گا آپ کو یہ دل کے معاملات کیا ہے، کیونکہ آپ نے جھنجھوڑا ہے۔ ہاں علماء کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ہاں علم والوں کو بھی بہت اصلاح کے مدنی پھول آپ کو پڑھنے سننے کو ملے گے انشاءاللہ۔ یہ خوف میں کے بارے میں عرض کرا تھا میں، یہ خوف نہیں ہے نا ہم کو، رب تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ نیک بندے دیکھو کیسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ خوف نہ ہونا یہ کتنے نقصان کی بات ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے اقوال سنتے ہیں، ہاں رسولوں کے بھی سنتے ہیں، ان کا خوف کیسا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل تمہیں کس چیز نے بلایا ہے؟ جبریل علیہ السلام کے الفاظ بھی سنیے گا اور اپنے دل میں یہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا اللہ کی خفیہ تدبیر کا۔ عرض کی، یعنی کہ یہ جو رونے کا سبب پوچھا تو عرض کی، جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ جب سے جہنم کو پیدا فرمایا نا، اس وقت سے میری آنکھ سرخ نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ سوکھی نہیں پڑی ہے، یعنی کہ نم، خوف کے مارے آپ کی آنکھیں نم ہوا کرتی ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ بولے بھائی، فرشتوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں، فرشتوں کے سردار کی۔ آگے سنیں، جب سے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھ اس وقت سے کبھی بھی سرخ نہیں ہوئی، اللہ کے خوف سے نم رہتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ کر لو، نعرے لگا لو، محفلوں میں آ جاؤ، بس کافی اتنا یہ کر لو۔ یہ فرشتوں کے سردار کا خوف ہے۔ آگے سنیے، آگے بھی کئی فرامین ہیں، وقت اتنا ہے نہیں کہ آپ کو چند باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ اہم باتیں بیان کے حصے کی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب اللہ عز و جل نے ابلیس لعین کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، اس وقت تک یہ روایت ہے، جب اللہ عز و جل نے ابلیس لعین کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی تو حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ پاک نے ان سے پوچھا، حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے، پوچھ رہا ہے میرا رب کہ تم نے دونوں کس چیز سے رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں، خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی رہو، میری خفیہ تدبیر سے بے خوف مت ہونا۔ اللہ اللہ، یہ اقوال پڑھتے چلے جائے، اگر پڑھے نا پتہ چلے گا ہم کو یہ معاملات ایمان کے ہمارے بہت۔ ابن آدم کو نا اللہ تبارک نے
बहुत तबकात पे पैदा फरमाया, उसमें से 4 तबकात हैं। एक कि अल्लाह ने बाज़ को मुसलमान पैदा किया, मुसलमानों वाली वो ज़िंदगी गुजारते हैं और ईमान की हालत पे इस दुनिया से रुखसत होते हैं। बाज़ काफिर पैदा होते हैं, काफिरों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और कुफ्र पर ही मर जाते हैं। बाज़ मुसलमान पैदा होते हैं, मुसलमानों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और यही गुनाह की नौसत जो है आज हमारे माशरे में जो बढ़ रही है ना, ये गुनाह की नौसत की वजह से ये भी होता है। कई देखा भी हमने, कई मुसलमान आज ईमान से बाहर होते चले जा रहे हैं। कोई गुस्ताखी करके हो रहा है, कोई आमाल के ज़रिए हो रहा है, कोई लफ्ज़ों के ज़रिए हो रहा है, कोई किरदार के ज़रिए हो रहा है। बाज़ाहिर ऐलान कर दे रहा है, कुफ्र का ऐलान कर दे रहा है, ईमान से फिर जा रहे हैं। तो बाज़ मोमिन पैदा होते हैं, मोमिनों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और कुफ्र पर, हालत कुफ्र पर वो मरते हैं। और बाज़ ऐसे हैं जो काफिर पैदा होते हैं, काफिर वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और ईमान की हालत पे वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं, ईमान नसीब हो जाता है। कहीं अभी माशरे में देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, छुपा नहीं है। हमें गौर करना चाहिए, अल्लाह की खुफिया तदबीर से हमें डरना चाहिए। हमारे बुजुर्गान दीन ही फरमा रहे हैं, खुद हमारे गौसे पाक का फरमान भी सुनिए। गौसे पाक की न्याज करने वालों, गौसे पाक के नारे बनने वालों, गौसे पाक का भी फरमान सुन लो हमारे लिए, हाँ मेरे और आपके लिए हमको नसीहत कर रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? हुज़ूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह औलिया के सरदार हैं, मगर आपने ईद के दिन लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं तो लोगों से कहा कि लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, कल ईद है, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। तो मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो इरशाद फरमाया ना, वो सुनने वाला है और खौफ करने वाला है कि मेरी यानी अब्दुल कादिर जिलानी की ईद उस वक्त होगी जब मैं अपना ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से जाऊंगा। ये गौसे पाक का फरमान है मेरे और आपके लिए। भाई कई नसीहत के मदनी फूल होते हैं मेरे और आपके लिए, इनके ज़रिए तो कईयों को ईमान की खैरात मिली है, हाँ ईमान की दौलत मिली है इनकी वजह से। ये अक़वाल पढ़ने के बाद कई बेअकल ऐसे मामला की तरफ, गुस्ताखी की तरफ आ जाते हैं। तो पढ़े, इश्क वालों से सुने और इश्क वालों की किताबें पढ़ेंगे ना आशिक़ रसूल की, तो आपको जब पता ये सही आपको बातें ये मालूम होगी। आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते जिसको ज़िंदगी में सल्ब ईमान यानी कि ईमान के छीन जाने का खौफ ना हो, नज़ा के वक्त उसका ईमान छीन जाने का खतरा है। ईमान के ताल्लुक़ से गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जी हाँ, कि अल्लाह ने ईमान की दौलत से हमें नवाजा है। एक दुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से फरमाया करते तालीम उम्मत के लिए, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। एक हमने भी मामूल बनाया, हम ये दुआ पढ़ने का मामूल बनाया, कसरत से दुआ ये मांगा करें। इसका मतलब क्या है? ए दिलों को फैलने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर कायम रख। हमको नसीहत कर रहे हैं, नसीहत के मदनी फूल ये मेरे आका के। काश हम ये समझ जाए यार, अपने ईमान की फिक्र करें, क्योंकि देखो खात्मे के ऊपर गौर करें। दुनिया में चाहे आप जैसी ज़िंदगी गुजार ले, आप मरते वक्त अगर ईमान सलामत रहा तो बाद के जो मामला थे ना वो खैर है, वरना बर्बादी है। हाँ, इसीलिए तो कई देखे होंगे आपने कि कई ऐसे मुसलमान दुनिया से गए पर उल्मा ने उनके ऊपर कलम नहीं उठाया है। हाँ, कलम उठाया नहीं, यानी कि लिखा नहीं उनके बारे में। इनके ईमान का मामला इतना नाजुक है भाई, किसी को ईमान वाला कह देना और किसी को गैर ईमान मोमिन को अगर कोई कह दे तो मसला है। उसका गौर करने का मकाम है। हमें
چاہیے کہ ہم اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرے، اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر کریں. کیوں پتہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، وہ بھی سن لیتے. اب یہ کیا، یہ فکر کیوں نہیں ہوتی ہے پتہ ہے ہم کو؟ یہ فکر اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے، محلے میں نہیں، ماحول میں جس کو ہم دوست بنا رہے ہیں. کس کو بنا رہے ہیں ہم؟ دوست وہ اچھا ہے ہمارا جو سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہو، جو سب سے زیادہ ہوٹلوں پر بیٹھتا ہو، جو سب سے زیادہ نماز قضا کرتا ہو، جو گستاخ رسول ہو، اس کو دوست بنا رہے ہیں، رہ رہے ہیں اس کے ساتھ. ہمیں رہنا پڑتا ہے. اور آؤ یہ فرمان بھی سن لو. پھر کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سوچے کس سے دوستی کر رہا ہے. کہ دوستی کرنے والوں، دوستی کا مطلب تو سمجھو. کوئی اگر دوستی کا مطلب سمجھ جائے نا اگر، تو وہ کامیاب ہو جائے گا. دوست کس کو بنانا ہے مجھے؟ جو آپ کو نماز کی دعوت نہیں دے رہا ہے، جو آپ کو نماز کے لیے لے کر نہیں جا رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف آپ کو بلا نہیں رہا ہے، کیسا دوست ہو سکتا ہے آپ کا؟ آپ کو روک رہا ہے الٹا. دشمن کہتے ہیں ایسے کو، دوست کہتے ہیں بھلائی سوچنے والے کو. بھلائی ہمارے ساتھ جو بھلائی کرے، اچھا کرے، اس کو. ہم نے دوست کس کو بنایا ہے؟ آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ میں نے دوست کس کو بنایا ہے، میں کیسوں کی دوستی میں رہتا ہوں، کیسے ماحول میں رہتا ہوں. ارے اسلام بھائی، ماحول ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسی سوچ ہم رکھیں. جی ہاں، اب جیسی سوچ ہماری ہوگی نا تو ہم ویسے ہی اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں گے. ہاں، آج پہلے چند سال پہلے اسکولوں میں ٹیچر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، بیٹا کیا بننا ہے؟ تو کہتا تھا کوئی عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، حافظ بننا ہے، قاری بننا ہے. یہ سے معاملہ. آج اٹھاتے تو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بیرون ملک جانا ہے، بڑی بلڈنگ بنانی ہے، اللہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. یہ معاملات آ گئے. کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ بچے ہوتے ہیں، یہ گھر میں جو ہم سے ذہن دے رہے ہیں نا، یہ پریکٹیکل ہے یہ بالکل بھی. ہمارے بچوں کی تربیت ہم بول نہیں رہے، کر رہے ہیں. بولنا اور ہے، کرنا اور ہے. بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہم. ہاں، غور کر لینا، بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہم. کیا؟ ابا گھر میں ہوتے، کوئی بلانے والا آ گیا نا گھر، آپ کو جانا نہیں ہے، بیٹا جا کر کہہ دے ابا گھر پہ نہیں ہے. بچہ ہے، وہ بچے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بچہ آ گیا، آپ کو ابو گھر پہ نہیں ہے، آ گیا بچہ. آپ نے سکھایا کیا؟ غور کریں آپ نے بچوں کو جھوٹ سکھایا ہے. جی ہاں، گھر میں اسلامی بہنیں بھی یہ تذکرہ کرتے رہتی ہے، بیٹا یہ فلاں ڈاکٹر ایسا، فلاں انجینئر ایسا، اس کی یہ بلڈنگ ہے، اس کے پاس اتنے پیسے. یہ تذکرے ہو رہا ہے گھر میں. وہ بچے کے ذہن میں یار وہ آ گیا، یار یہ بڑا خوش ہے، یہ جو میری ماں، میرا والد جو تذکرہ کر رہا ہے اس شخص کا، یہ تو بڑا خوش ہے. کیا ہے یہ؟ انجینئر ہے، میں بھی انجینئر بنوں گا، میں بھی ڈاکٹر بنوں گا، میں بھی یہ بنوں گا، میں بھی پیسے والا بنوں گا. ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پریکٹیکل ہو رہا ہے. اور ہم بھی خوشی تربیت کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی. خیر اسلام بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پہلے جائزہ لے لیں. یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کو یہ دکھ رہا ہے نا، یہ اس دور کی علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ کا یہ 72 نیک اعمال کا یہ رسالہ ہے. کئی صوفیاء کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے نا تو ان کی فکر تھی صوفیاء کی کہ کس طرح سے مسلمان کو ہونا چاہیے، ایک مسلمان کیا ہو. آپ وہ کتابوں کا مطالعہ بعد میں کر لینا، پہلے اس مختصر سے رسالے کو ہے نا، یہ سوال پر مشتمل ہے. اس کے چند کالم بھی دیے گئے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے نا، پڑھیں گے آپ، پتہ چلے گا آپ کو کیا ہے. یہ ہے اعمال کا جائزہ کرنے کا کیلنڈر. اعمال کا جائزہ لکھتے ہیں نا ہم، آج گیس ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ کون سی تاریخ کو یہ ہوگا.
ये रोज़ाना अपने अमाल का जायज़ा लेना है। सबसे पहला अमल क्या है पता है इसमें? सबसे पहला अमल है क्या? आज आपने कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले अच्छी नियत की। सबसे पहला अमल है। इसीलिए दावत इस्लामी वाले हर काम से पहले आपको अच्छी नियत करवाते दिखेंगे। आप चाहे इंडिया में रहे, लंदन में रहे, पेरिस में रहे, XYZ जितने भी ममालिक में जाएंगे, दावत इस्लामी इंडिया की थोड़ी ना है। दावत इस्लामी इंडिया की थोड़ी ना है, आलमगीर तहरीक है दावत इस्लामी। हाँ, तहरीक, तहरीक किसे कहते हैं? बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये दावत इस्लामी बहुत बड़ी तहरीक है। हाँ, और ये पूरी दावत इस्लामी अगर आपको जाननी है ना, अगर मत जाओ आप किसी मुबल्लिग के पास, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी मुबल्लिग के पास जाने की, कोई ज़रूरत नहीं दावत इस्लामी के कोई इमाम के पास जाने की। ये रिसाला है ना, आप ले लो और इसका मुताला कर लो। आप पूरी दावत इस्लामी इस रिसाले के अंदर है। हाँ, ये इतना सा रिसाला है, पूरी दावत इस्लामी इस रिसाले के ऊपर चल रही है। हाँ, और इसी की बरकत है। जी हाँ, ये बरकत है, अल्लाह की रिज़ा शामिल हाल है, मुस्तफ़ा करीम की नज़र इनायत है कि दावत इस्लामी दुनिया भर में जब से बनी है ना, जब से बनी है, एक मस्जिद से काम शुरू हुआ दावत इस्लामी का। एक ने शुरू किया है, वाहिद एक, और वो वाहिद ज़ात कौन सी है पता है? मौलाना इलियास सत्तार कादरी। जब ये नारा लगा था ना कि मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, और चंद बैठे हुए क्या बातें कर रही है, अकेला बंदा एक मस्जिद में दर्स दे रहा है और नारा लगा रहा है मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। क्योंकि एक मस्जिद में था ना, एक मस्जिद का इमाम अगर ये नारा लगाए तो सवाल बनता है, आज देख लीजिए, वो उस वक्त तो नारा लगा था और आज देख लीजिए कैसी गौसे पाक की एक करामत है कि आज पूरी दुनिया में नारा लग रहा है और दावत इस्लामी का काम बढ़ता ही चला जा रहा है। जहाँ शुरू हुआ है ना, कहीं मुझे एक बता दे आप, आपके इल्म, मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा, कहीं एक बता दे आप, दावत इस्लामी का काम कहीं शुरू हुआ हो और बंद हो गया हो, एक जगह बता दे आप। अल्हम्दुलिल्लाह, एक जगह बता दे आप कि कहीं ऐसा हुआ हो। बाज खुद की नादानी होती है, पर हकीकत अगर कोई जाने ना, ये दावत इस्लामी, ये इस एतबार से अमल करने वाला दावत इस्लामी वाला ये है। मैं किसी मुबल्लिग की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान में मामला, ये इसको ले ले आप और अमल करने वाले बन जाए और इसके मुताबिक किसी मुबल्लिग को देखे और फिर देखे उसके शहर में, उसके गांव में क्या मामला थे दावत इस्लामी के, पता चल जाएगा आपको। जी हाँ, कैसा गौसे पाक का फैज़ान है दावत इस्लामी के ऊपर। दावत इस्लामी के शोबेजात बढ़ते ही चले जा रहे हैं, 80 से ज़्यादा शोबों में दावत इस्लामी काम कर रही है। दावत इस्लामी के सिर्फ हिफ्ज़ और नाजरे के मदरसे बताऊँ मैं आपको, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हम इंडिया की ही बात करते हैं। और दावत इस्लामी की इंडिया ये रजिस्टर है, इसके ऊपर ही दावत इस्लामी हिंद के नाम से ये गवर्नमेंट के उस पर रजिस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इंडिया में दावत इस्लामी के हिफ्ज़ नाजरा के मदरसे एक नहीं है, दो नहीं है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, 500 नहीं है, 1000 नहीं है, 1300 से जामिया मदरसा मदीना दावत इस्लामी के इंडिया के अंदर चल रहे हैं, जिसमें क्या होता है, हिफ्ज़ नाजरा पढ़ाया जाता है। कई हुफ़ाज़, हज़ारों हुफ़ाज़ दावत इस्लामी के फारिग अब तक के हो चुके और वो मदरसे चला रहे। ये जो मदरसे 13,000 की जो बनी है ना, 1300 की जो बनी है ना, तो ये जो पढ़ रहे हैं वो या वापिस दावत इस्लामी के ना आलिम को टेंशन है ना हाफिज़ को टेंशन है। यार क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा इसके बाद, हिफ्ज़ करने के बाद? आंखें बंद करके आप अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदरसे में डाल दो। हाँ, आपके बच्चे की सलाहियत पे डिपेंड करता है। आपका बच्चा जो करना चाहे वो कर लेगा। जी हाँ, जो करना चाहे वो कर लेगा, जो डिपार्टमेंट में काम करना चाहे वो डिपार्टमेंट। अगर तदरीस का दरवाज़ा खुला है दावत इस्लामी का, बिल्कुल। दावत इस्लामी आलिम बनाने का जो मदरसे है ना दावत इस्लामी के, 250 से ज़्यादा मदरसे दावत इस्लामी के इंडिया के अंदर है, सिर्फ 250 से ज़्यादा। अगर इसका इनके बच्चों का अगर जायज़ा लें, 70,000 से ज़्यादा
طلبہ پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ دعوت اسلامی نے بچوں کو ہی نہیں بڑوں کو بھی سنبھالا ہے. ہاں انڈیا کے اندر دعوت اسلامی کے 5000 ایسے مدرسے چلتے ہیں جس میں آپ جیسے بزرگ جوان بڑی عمر کے جو کاروبار کرتے ہیں اپنی اپنی دکانوں پر بیٹھے, ٹائم نہیں ان کے پاس, دعوت اسلامی ان کو ان کی دکان پہ جا کر ان کو قرآن سکھا رہی ہے. 5000 سے زیادہ مدرسے دعوت اسلامی کے انڈیا کے اندر. یہ بھی بڑوں بالغان مدرسہ, بڑوں کا مدرسہ یہ کہتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ چلا رہی. دعوت اسلامی کی 300 سے زیادہ مسجدیں قائم ہیں جس میں خود کے امام دعوت اسلامی کے ہے اور دین کی یہ خدمت کر رہے الحمدللہ. اسی طرح سے دعوت اسلامی نے حال ہی میں 2 سال ہوئے, جو میں نے الفاظ کہا نا بڑھتے چلی جا رہی ہے دعوت اسلامی, حال ہی میں 2-3 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا مفتی کورس کا. 2023 میں 5 فروری کو دعوت اسلامی نے انڈیا کو 22 مفتی دیے. الحمدللہ کتنے؟ 22 مفتی, 22. اور ابھی 32 کے برانچ اور قائم ہے آنے والے یعنی کہ 1-2 سال کے اندر آپ کو وہ بھی انشاءاللہ کی رحمت سے مل جائیں گے. 50 سے زیادہ مفتی علیہ کرام دعوت اسلامی کے, دارالفتہ بھی دعوت اسلامی کا انڈیا کا نا قائم ہو چکا ہے الحمدللہ. جی ہاں دعوت اسلامی یہ آنکھ والے کان والوں میں تو کام کر ہی رہی ہے. سن رہے ہیں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. دعوت اسلامی جن کے پاس یہ نہیں ہے نا, زبان نہیں ہے, آنکھ نہیں ہے, کان نہیں ہے, دعوت اسلامی ان میں بھی کام کر رہی ہے الحمدللہ. ہاں بہت آسان ہے. ابھی یہاں تذکرہ کر رہے ہیں, ارے یار سدھر جاؤ, ارے یار یہ کر لو وہ کر لو, سن رہے ہیں آپ, ان کو کہاں سے سکھاؤ گے؟ دعوت اسلامی نے اس میں بھی قدم آگے بڑھا دیا الحمدللہ. اور ان قریب الحمدللہ ہند کے اندر دعوت اسلامی کا گونگو بہرے یعنی کہ گونگو بہرے یہ بھی کیا میرے پیر کی سوچ ہے کیا یہ گونگے بہرے بھی نہ کہے بھائی ان کو, آپ مسلمان ہیں بھائی, ان کو گونگا بہرا تو ان کو برا نہیں لگتا ہوگا, چاہے وہ سنتے نہیں ہو برا نہیں لگتا ہوگا. ایک اصطلاح دے دی اسپیشل, کیا اسپیشل یعنی کہ بہتر اسلامی بھائی, اسپیشل سب سے ہٹ کر اسلامی بھائی, اسپیشل ڈپارٹمنٹ یہ ہے دعوت اسلامی کا. یہ الحمدللہ قائم ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں پوری مطلب کیا کہے لوٹ مار مچی ہوئی ہے, تعویذات. ہاں جسے دیکھو وہ تعویذ کے نام پر یہ لکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہے کہ تعویذ کے نام پر آپ پیسہ لیں, نہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات. نعرے بڑھتے ہم عشق محبت عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کے فرمان پر عمل تو کرو. دعوت اسلامی ہے نا, اعلیٰ حضرت کے 10 جو نکات ہے نا, پڑھ لیجیے گا, کبھی وقت نہیں ہے اتنا کہ 10 نکات آپ کو بتاؤں میں. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہوں بھائی, ذمہ داری کے ساتھ ہی کہوں گا آپ کو. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو 10 نکات ہے نا دعوت اسلامی, دعوت اسلامی جو لے کر چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کے, اب شاید ہی آپ کو اتنے بڑے پیمانے پر کوئی تنظیم اپنی تو اپنی غیروں کی بھی نہیں ملیں گی آپ کو, اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے دعوت اسلامی. ہاں ہم سمجھتے ہیں اب یار سنی ہم یہ بہت سمیٹ گئے ہیں, ایسا نہیں, یہ بہت سوچ سے باہر نکلے آپ. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تو ہو, پتہ چلے گا. ہاں یہ پر یہ مارنا پڑے گا, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے یہ میں کو مارنا پڑے گا آپ کو. یہ میں کو ختم کرنا پڑے گا, یہ واوئی کو ختم کرنا پڑے گا. ہاں بعض اوقات کئی نئے علاقے میں جانا ہوتا ہے نا, ارے بھائی ہم کو صوفی نہیں بننا ہے. ہاں یہ الفاظ کہتے ہیں وہ بھیا میں یار دعوت اسلامی میں کیوں صوفی ٹائپ کے لوگ یار, یہ مت کرو وہ مت کرو بھائی, ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی ایسی ہی زندگی گزارنی مسلمان کو. ہاں اسلام ایسا پھیلا ہی ہے, مسلمان ہے ہی ایسا. دعوت اسلامی کا جو شعبہ میں عرض کر رہا ہوں نا روحانی علاج کا, یہ فی سبیل اللہ تعویذات اختاریہ دعوت اسلامی کے دیے جاتے ہیں. کن کن شعبوں کے بارے میں بات کروں, چند شعبوں میں اتنا وقت ہو گیا, نصیحتوں میں اتنا وقت ہو گیا. اگر گفتگو سننی ہے, ماحول میں جڑنا ہوگا, آنا ہوگا. میں یہ حضرت کا کل کال آیا تھا, ہمارے علاقہ نگراں میں, ان کو بھی میں نے کال نہیں اٹھا پایا تھا کیونکہ دعوت اسلامی
तरबियत का सिलसिला ना होता रहता दावत इस्लामी का। तो 3 दिन से ना भुसावल में हम थे, तरबियत का सिलसिला था, मॉडलिंग कोर्स, यानी कि मुसलमानों को नमाज सिखाने के ताल्लुक से। ये कई मरतबा हुआ है और करने के लिए गए थे, यानी कि अपने आप को ना खाली रखना। ये नहीं है कि मुबल्लिग बन गए तो आप आ रहे हैं बहुत बड़े, अब ये हो गए। दावत इस्लामी में है कि भरते रहो भाई अपने आप को, खाली हो, खाली रहेंगे ना तो भरेंगे। भरा हुआ गिलास अगर देखे ना आपने, और भरा हुआ रख दो उसको, उसके ऊपर पानी डालो, अब क्या होगा, छलक जाएगा, गिर जाएगा। और अगर खाली रह दो, जो डालोगे ना वो रह जाएगा। तो ये अपने आप को खाली समझे हम, तो कुछ भी आता रहेगा। हाँ, इल्म आता रहेगा। इल्म ऐसे समंदर है, अपने आप को भरना का जो मामला है ना उसको निकाल दें हम अपने इससे। तो ये तरबियत का सेशन था, इसमें तो कॉल उठा नहीं पाया हजरत का मैं, तो हमारे इलाका निगरान से कॉल आया, हमारे दिल्ली के जो इलाका निगरान है हाफिज़ ज़ुबैर साहब, उनका कॉल आया, बोले आपको बयान के लिए जाना है। मैं यार मैं नहीं जा सकता बयान के लिए, कोर्स से मैं यहाँ पर वो, तो बोले कुछ ना कुछ ऐसी हुई तरकीब। फिर हजरत से भी बात हुई, तो ये मामला थे। तो एक यानी कि मैंने इलाका निगरान को कहा था, इनको भी आते से ही कहा मैंने कि भाई काफ़िले का क्या है, काफ़िले सफ़र करेंगे वहाँ से। तो हमारे वो इलाका निगरान ने इनसे बात की होगी शायद, हाँ भाई वो काफ़िले में सफ़र करने वाले। अब ये लालची शख्स, अब मुँह में पानी आ गया, चले भाई कर लेते, आ जाएंगे भाई। इस्लाम में काफ़िले में सफ़र कर रहे भाई, चलो काय का जदवल, काय का ये, चलो पहले का बयान करके आएंगे। आगे भैया अब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। मैंने ना कूद रहे थे यार कुछ इस्लामी भाई, अरे यार ये हो रहा वो हो रहा, ये ऐसा है वैसा है। अल्लाह खैर करे मुसलमानों के हालात के ऊपर। मैंने कहा बहुत हंसने वाली बात नहीं, मेरे को हंसी आ गई इसमें, पर बहुत अजीब बात है। मैंने एक जुमला एक को कहा, दोहरा रहा हूँ, 11वीं शरीक की निस्बत से 11 कर देता हूँ उसको। मैंने कहा आप है ना ये नवंबर दिसंबर में आप, यानी कि इनको 500 कहा, आपको आपके सामने 1100, 11वीं वाले की निस्बत से 1100 कह रहा हूँ, आप 1100 इस्लामी भाइयों को आप मदनी काफिले में सफ़र करवा दो आप अम्बरलैंड से। 1100 इस्लाम भाई को चैलेंज करेगा, यानी कि चैलेंज वाला जुमला करना भी चाहिए नेकियों में। मैंने कहा 2024 है ना आपका है, 2 महीने में आप हमको ये करके दे दो, 2024 आपका है। फिर बोलो आप क्या करना है। वो आला हज़रत का शेर है ना, सी साहब कौन सा है वो, नज़दीक के सीने में गार है, ये रज़ा की नेज़े की मार है, कि नज़दीक के सीने में गार है, ये अदू के सीने में। ये वो भी शेर याद नहीं है ना, चलो। पर ये रज़ा के नेज़े की ये दावत इस्लामी ऐसी मार है ना कि जा पड़ती है ना वहाँ से फिर ख़त्म, चाहे जितने आ जाए, हमको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीर का एक हिकमती जुमला है, अगर किसी को ख़त्म करना हो ना उसका तस्करा ख़त्म कर दो। हाँ, सबसे पहले उसको निकालो, ख़त्म इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। तो हमको है ना शैतान के साथ हमारी जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हमको शैतान के साथ जंग करना है, इसी के साथ हमारे मुसलमानों के साथ हमको ये सारे मामला हमारे नहीं होने चाहिए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान में जो गलतियाँ होगी अल्लाह पाक उसे भी माफ़ फरमाए।